कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? हाँ। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं, मतलब लास्ट क्लास में तूने पढ़ा ना? यू हैव स्टडीड राइट? यस। ओके, टेल मी, फर्स्ट वन इज व्हाट इज साइंस। हम थोड़ा मतलब रिपीट करेंगे थोड़ा, ठीक है? व्हाट इज साइंस? टेल मी। साइंस इज व्हाट? अ systematic and tell me, organized knowledge. Okay, in your class 11 and 12 तुम 3 साइंस के टॉपिक के ऊपर बारे में पढ़ोगे। व्हाट आर द टॉपिक्स? टेल मी। बायोलॉजी and chemistry and physics. Okay, what was physics? Tell me, what is physics? Physics is the study of what? It is the study of law that govern the nature. Okay, very good. Basic laws of nature and their manifestation in the natural phenomena. Okay, very good. Natural phenomena. Tell me, any scientific invention or any scientific development involves some scientific methods, any scientific development. So since physics is a part of science, तो इसमें भी क्या होगा? These steps will be followed. So there are some interconnected steps. Scientific methods involve some interconnected steps. Can you tell me what are the steps? Science, systematic observation. Very good. Systematic observation means any scientific method starts with, any scientific development starts with what? Very important one, observation. If you are observing something new or something that was happening from the earlier but you don't know the explanation, then you have to go through these steps. Okay, then what? Tell me. Then controlled experiment. What is controlled experiment? Controlled experiment means experiment done in your lab. Controlled experiment. Okay, experiment means there are series of experiments, not only one experiment. मतलब एक मेथड को अगर हम एक ऑब्जर्वेशन का अगर देख रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. ओके, नाउ टेल मी, हम एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे? टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड सम रिजल्ट. So what was the first step? Tell me. Quantitative reasoning and qualitative reasoning. मैंने एग्जांपल भी दिया था. रीजनिंग मतलब जैसे मतलब gravitational pull depends upon 2 factors. What are the factors? Tell me. Mass and the distance. So tell me, quantitative reasoning requires mathematics, right? Quantity. Yes. If you are measuring some quantity, then you need mathematics. मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स लगेगा. ठीक है, देखेंगे मैथमेटिक्स कैसे लगता है. उसके बाद क्या है? After this reasoning, quantitative and qualitative reasoning, you have to give a formula. So that formula is called, tell me, what was the 4th step? Tell me. Mathematical modeling. What is mathematical model? Means there would be a formula related to this observation. Okay, जैसे कि एक एग्जांपल दिया था, F equal to what? Gm1 m2 divided by what? R square. Okay. Square. What was the 5th step? After mathematical modeling, prediction. You have to predict something. So
you have to predict, हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था ऑन डिफरेंट masses, on sun and earth and moon, proton, electron, proton. Okay. In some cases these predictions are right. Then the law or this model is what? Verified. Verification. If it is right, then it is verified. If it is not right, means wrong, then क्या होगा? Falsification. Falsification. Example याद है? Gravitational law of gravitation किसके ऊपर applicable नहीं था? Proton और electron. On charge particle. Okay. तो हम लोगों ने क्या किया था? आप अगर करेक्ट नहीं है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रिपीट होगा. ठीक है, फर्स्ट स्टेप रिपीट होगा. उसके बाद टेल मी, आफ्टर साइंटिफिक मेथड्स हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? टेल मी. Two principal thrust in physics. हाँ, ओके. Two principal thrust in physics. Two principal thrust in physics. Is the board clear? Is the board clear? Okay. Yes. What is thrust? Thrust means you have to put some Pressure. or stress. Means इसका मतलब simple meaning ऐसा है, for any physical development there are certain aspects on which you have to put stress. So what are those? Tell me. Unification. And What is unification? What is unification? Tell me. Unification is the attempt. It is an attempt to, tell me, to explain derived physical phenomena. Diverse or different? Diverse physical phenomena. Diverse physical phenomena in terms of few concepts and tell me laws. अच्छा, why unification is necessary? Tell me. नेचर में बहुत सारे चीज हो रहा है, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला लगेगा तो फिजिक्स क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा. इतना सारा हर एक चीज के लिए अगर अलग अलग फॉर्मूला होगा तो फिजिक्स बहुत टफ होगा. तो हम लोगों को क्या करना है? डाइवर्स फेनोमेना को अगर एक ही लॉस एक थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाए तो फिजिक्स थोड़ा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. फिर भी फिजिक्स छोटा नहीं है, फिजिक्स बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है. फिर भी हम क्या कोशिश करते हैं? इसको यूनिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं. ठीक है. व्हाट वाज द सेकंड थ्रस्ट? टेल मी. सेकंड थ्रस्ट क्या था? रिडक्शनिज्म. व्हाट इज रिडक्शनिज्म? रिडक्शनिज्म मतलब क्या होता है? टू understand the properties. To understand the properties of a complex system, complex or we can say bigger system, complex or bigger system in terms of the properties, and interactions of its constituent and simpler parts. मैंने एक एग्जांपल भी दिया था. कैसे दिया था? मैंने बोला था एनी थर्मोडायनामिक वेरिएबल. एग्जांपल क्या होगा? एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल टेम्परेचर. ओके. सपोज you have been given a thermodynamic system, suppose an isolated gas chamber, and you have to find what is the temperature of this system. Now
to find the temperature of the system, you have to take a small part or small part of the system and check what are the average kinetic energies of these molecules. So you can say that temperature is nothing but average kinetic energy of the molecules. इसका मतलब क्या होता है? टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द होल सिस्टम, पूरा सिस्टम को नहीं देखना है, सिस्टम का एक सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ले लो, उसका जो मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। क्लियर? लास्ट क्लास में मैंने ऐसे भी बोला था। हीट क्या होता है? व्हाट इज हीट? टेल मी, व्हाट इज हीट? What is heat? Degree of heat is the total kinetic energy of the molecules. Heat is nothing but kinetic energy. हम बाद में पढ़ेंगे, एक चैप्टर भी है, क्लास 11 पार्ट 2 बुक में है, एक चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, उसमें हम देखेंगे व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी and what is heat? Heat is the total kinetic energy of the molecules. molecules में बहुत सारे kinetic energy लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का होगा, न्यूक्लियस का होगा, एटम वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी लगता है। सारे एनर्जी का जो टोटल वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो, हीट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम क्या पढ़े थे? स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, मतलब इसका रेंज क्या है? टेल मी स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मैंने क्या बोला था? द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वाइड। व्हाट वाज द रेंज? टेल मी। For length, it was 10 to the power minus 15 meters. Diameter of a nucleus. Diameter of a nucleus. Nucleus. Okay, right. Then 10 to the power 36 meter. Diameter of nucleus लिखा था या diameter of nucleus मैंने लिखा था? Nucleus. Nucleus नहीं है, nucleons है, nucleons। न्यूक्लियस नहीं बोला था, न्यूक्लियॉन्स बोला था। न्यूक्लियस का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियस। दीज आर द मेंबर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, दिस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन, राइट? ओके, टाइम और मतलब मास के रेस्पेक्ट में बोलो, व्हाट इज द रेंज? मास के लिए इलेक्ट्रॉन का मास बोलो, इलेक्ट्रॉन का मास का रेंज क्या होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। अच्छा, अगर रेंज पूछा जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलना है, ठीक है? अगर रेंज पूछा जाए 10 का पावर बोल दो। सो व्हाट 10 to the power minus 31। एंड व्हाट इज द मास ऑफ द यूनिवर्स? 10 to the power 55। वेरी गुड। एंड टाइम का रेंज क्या था? व्हाट वाज द रेंज ऑफ टाइम? किस टाइम से किस टाइम के ऊपर फिजिक्स काम करेगा? 10 to the power minus 6, 12 और 22 to 10 to the power 12, 18, 10 to the power 18, 10 to the power minus 22 to 10 to the power 18 second. Okay, what is 10 to the power 18 second? It is the life of a star or life of a sun, whatever it is. सन का जो एज होता है। ओके, नेक्स्ट हम क्या बोले थे? व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स? टेल मी व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स का ब्रांच मैंने 3 ब्रांचेस बोले थे। व्हाट आर द ब्रांचेस? टेल मी। फर्स्ट वन वाज व्हाट? क्लासिकल। क्लासिकल मींस किसके ऊपर होगा? इट डील्स विद टेल मी macroscopic particles. Macroscopic means cricket ball सोच लो,
एक बात सोच लो, एक मतलब बैट सोच लो, इसके ऊपर जो फिजिक्स लगता है उसको हम बोलेंगे क्लासिकल, जो मतलब खुली आंखों से दिखता है। ठीक है, अभी देखो उसके बाद क्या पार्ट आएगा, टेल मी। क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स deals with what, tell me? It deals with microscopic particles. It deals with microscopic particles. माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, जो एलिमेंटरी पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस, इसके ऊपर जो फिजिक्स लगेगा। क्लासिकल फिजिक्स एलिमेंटरी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम और एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम फिजिक्स। इट डील्स विथ व्हाट, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। क्लियर? अच्छा बोलो तो तुम तुम बोल रहे हो फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कस कर रहे हो, फ्रिक्शन। हाँ, इसके ऊपर क्लासिकल लगेगा या क्वांटम लगेगा? फ्रिक्शन, क्लासिकल। क्लासिकल फ्रिक्शन तो दिखता है, लेकिन उसमें भी क्वांटम फिजिक्स का एक रोल है, हम बाद में सीखेंगे। क्लासिकल फिजिक्स में भी क्वांटम का कुछ रोल है, कुछ कनेक्शंस है, बाद में सीखेंगे हम। ठीक है, और एक लास्ट पार्ट मैंने बोला था, तुम्हारे बुक में मेंशन नहीं है, फिर भी बोलता हूँ। क्या बोला था मैंने? बोला मेसोस्कोपिक। मेसोस्कोपिक डील्स विथ 10 to or 100 to 1000 atoms. 100 to 1000 atoms or 10 to 1000 atoms, means few atoms. Clear? Yes, sir. Okay, so this was the topic that I have discussed in my last class. Now what are the relations of physics with other subjects? Okay, physics से other subjects जो होते हैं उसका relation क्या है? So the next topic is relation of physics with other subjects. What is the relation? So first लेते हैं मैथमेटिक्स। अच्छा, साइंटिफिक मेथड में दो स्टेप्स थे ना, एक था मतलब क्वांटिटेटिव रीजनिंग, हाँ, और एक स्टेप था फोर्थ स्टेप, उसको क्या बोलेंगे हम? फोर्थ स्टेप क्या था? मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग। अच्छा देखो, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए मैथमेटिक्स चाहिए होगा। हाँ, ठीक है ना, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, मैथ इज द टूल ऑफ फिजिक्स। मैथ्स को हम फिजिक्स का टूल बोल सकते हैं। मतलब अगर फिजिकल लॉस को एक्सप्लेन करना है तो हमको मैथ्स एज ए टूल चाहिए होगा। मतलब मैथ्स को हम फिजिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। सिमिलरली फिजिक्स को भी मैथ्स से सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब मैथ्स को भी फिजिक्स का जरूरत पड़ेगा, फिजिक्स को भी मैथ्स का जरूरत पड़ेगा। मतलब ऐसे, मतलब someone said physics, if physics is the king, mathematics is the queen. Okay, क्या बोला? if physics is the king, mathematics will be the queen. Mathematics मतलब physics and mathematics are related, very much related. Okay, तो मैथ कैसा लगता है? What is your favorite subject? अच्छा लगता है। Favorite Computer. Computer is your favorite subject? Yes. What about maths and physics? सब मीडियम, इतना अच्छा नहीं। मीडियम। मैंने क्लास में क्या बोला था? एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में मैंने क्या बोला था? अगर फिजिक्स को तुम्हारा पूरा मतलब दिल दे दोगी तो फिजिक्स तुमको सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। चारों तरफ जो तुम देख रहे हो फिजिक्स से ही एक्सप्लेन होता है ज्यादातर, 99%। इवन केमिस्ट्री में भी जो एटम्स तुम वगैरह करोगे ना, वो भी फिजिक्स का, बोर रादरफोर्ड, फिजिक्स थे सब लोग। ओके, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे केमिस्ट्री। ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, जानते हो ना?
सर ने सिखाया ना, व्हाट आर द पार्ट्स, टेल मी। ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, देखो फिजिकल में तुम पढ़ोगे एटॉम, न्यूक्लियाई, सरफेस टेंशन, these are new terms, okay? तुमने surface tension, what is surface tension, you don't know, okay? Do you know what is surface tension? No, okay. Then viscosity, उसके बाद आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स। ये जब मैंने टॉपिक के बारे में बोला ना, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम पढ़ने वाले हो, ये सारा फिजिक्स ही है, पूरा फिजिक्स ही है। मतलब क्या है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इवन दिस सब्जेक्ट आर इंटर रिलेटेड। केमिस्ट्री में भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम किसके बारे में बोलेंगे, बायोलॉजी। सो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, लास्ट में बोला था, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, अच्छा तुमको एक मतलब प्लांट सेल, एक एनिमल सेल देखना है, कैसे देखोगे? माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना, माइक्रोस्कोप चाहिए। विदाउट माइक्रोस्कोप, अगर बायोलॉजी के लोग सोच ले मतलब हम फिजिक्स से कोई नाता नहीं रखेंगे, फिजिक्स से हमारा कोई नाता नहीं है, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप को छोड़ दो, नहीं चाहिए तुम लोगों को। अभी सेल देखो, माइक्रोस्कोप इज द इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स, राइट? सो विदाउट माइक्रोस्कोप हाउ कैन यू बी एबल टू see a plant cell or animal cell? माइक्रोस्कोप तो चाहिए होगा। इवन देखो मेडिकल साइंस में जाओ, मेडिकल साइंस में क्या होता है, मेडिकल साइंस में जो टेथोस्कोप यूज होता है, एक्सरे मशीन यूज होता है, वो भी तो फिजिक्स का इन्वेंशन है ना। हाँ, तो फिजिक्स तो चाहिए होगा, बायोलॉजी बोलो, मेडिकल साइंस बोलो, फिजिक्स तो चाहिए होगा। मैं किसी भी सब्जेक्ट को नीचा नहीं बोल रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ सारे सब्जेक्ट क्या है, इंटर रिलेटेड है। इवन केमिस्ट्री, बायोलॉजी में केमिस्ट्री चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, उसका नाम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री, हाँ, ठीक है। केमिस्ट्री में मैथ्स नहीं चाहिए, केमिस्ट्री में भी मैथ्स चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स आएगा तो फिजिक्स में मैथ्स आएगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री से मैथ्स रिलेटेड है। इवन मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, फिलोसॉफी। फिलोसॉफी तो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है तुमको? फिजिक्स का फादर फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी से ही फिजिक्स होता है। पहले ऑब्जर्व करेंगे, हम सोचेंगे, उसके बाद कुछ थ्योरीज वगैरह, उसके बाद हम उसको डेवलप करेंगे। तो फिलोसॉफी एंड फिजिक्स आर आल्सो इंटररिलेटेड, राइट? सो there is interrelation between all the subjects, most of the subjects actually. Okay, then your next topic is लिख लिया तुमने? लिखना नहीं है, समझना है। बुक्स में है, ये लिखना नहीं है, नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है। So what is math? Tell me. Maths, calculations. Yes, sir. Math is the tool of physics. Math is the tool of physics. और क्या बोला? Physics, if physics is the king, math is the queen. अब मैंने बोला someone said, तो कौन से, अगर नहीं मिला तो मेरा नाम लिख देना। अच्छा, whatever. Next is what? Physics. देखो हम यहाँ पर जितने सारे टॉपिक बोल रहे हैं ना, किसी भी टॉपिक में हम डीप में नहीं जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, हम पूरे एचएस कोर्स में यही सीखेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे किसमें क्या है। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। नाउ व्हाट इज फिजिक्स, तो समझ में आया। So you have to know what is technology. Technology क्या है? Technology is nothing but applied physics.
टेक्नोलॉजी क्या है, एक अप्लाइड फिजिक्स है। फिजिक्स का जो लॉज वगैरह है, जो फाइंडिंग्स है, उसको हम अगर अप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। जैसे देखो, फेराडे ने क्या बोला था, फेराडे का एक लॉ है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे ने बोला था, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने बोला था किसी भी रीजन में अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज किया जाए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। देखो क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज किया जाए तो क्या इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। मैंने लास्ट क्लास में बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड। किसने बोला था, किसने बोला था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, मैक्सवेल। किसने बोला था, मैक्सवेल। तो फेराडे ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फाइंडिंग है इसको डेवलप करके इंजीनियर्स क्या किए, तुम इंजीनियर्स डेवलप के इलेक्ट्रिक मोटर्स, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर। देखो फाइंडिंग्स किसका था, फिजिसिस्ट का था। किसने इसको यूज किया, इंजीनियर्स ने यूज किया। तो फिजिक्स का फाइंडिंग को अगर अप्लाई किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, एक मैं एग्जांपल दिया, और एक एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमको थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। थर्मोडायनामिक्स सेम है, ओके। तो थर्मोडायनामिक्स में सम लॉज है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी थर्मोडायनामिक्स का जो लॉज है उसको यूज करके हम क्या बना सकते हैं, हम हीट इंजन बना सकते हैं, हीट इंजन। हम रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं, जो रेफ्रिजरेटर घर में यूज करते हो ना। हाँ सर। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए ही पॉसिबल है रेफ्रिजरेटर। और एयर कूलर ले लो, एयर कूलर। सो कौन मैन्युफैक्चर कौन किया, मतलब किसने बनाया, इंजीनियर्स ने बनाया। किसको यूज करके, फिजिक्स को। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जो साइंस ऑफ और फिजिक्स ऑफ रेडिएशन, माने फिजिक्स रिलेटेड टू रेडिएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न फिजिक्स है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था। जो न्यूटन का फिजिक्स था वो 17th सेंचुरी में बना गया था, 17th सेंचुरी। और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें हम क्या बोले थे, मतलब क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका जो फाइंडिंग है इसको हम यूज करके कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं। कम्युनिकेशन, अच्छा पहले कम्युनिकेशन कैसे होता था, पहले कम्युनिकेशन हम चिट्ठी लिखते थे, उसको भेजा जाता था। अभी कैसा होता है, हम फोन यूज करते हैं। अभी देखो वीडियो कॉल हो रहा है, वीडियो में हम क्लास कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है ड्यू टू रेडिएशन एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। और एक एग्जांपल लेता हूं, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, न्यूक्लियर फिजिक्स दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर। ओके, न्यूक्लियर जो फिजिक्स है उसको हम यूज करके क्या करते हैं, न्यूक्लियर बम पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ इन्वेंशन तो है ही। न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर बम, इसमें जो फिजिक्स लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब इसका ही साइंस को यहाँ पर यूज किया गया है। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट अप्लाइड फिजिक्स। अभी देखो लास्ट में मैंने क्या बोला, लिखा, तुमने लिख लिया। हाँ। एग्जाम्पल हमको चाहिए। फेराडेस का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फाइंडिंग है उसको यूज करके हम क्या
इंजीनियर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफार्मर। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या बनता है? हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर। ओके, रेडिएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फाइंडिंग्स है उसको हम किस में यूज करेंगे? मॉडर्न कम्युनिकेशन। इसको हम लिखेंगे मॉडर्न कम्युनिकेशन। पहले का जो प्रिमिटिव कम्युनिकेशन था उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं होता था। मॉडर्न जो कम्युनिकेशन है, हम जो फोन में बात करते हैं, टीवी देखते हैं, उसका बारे में बोल रहा हूँ। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होगा। ठीक है, अभी देखो सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट तो आ रहा है। पहले हम कम्युनिकेट करते थे चिट्ठी लिख के, आज चिट्ठी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अभी के बीच कोई चिट्ठी लिखता है क्या? कोई लिखता है, मतलब एक्सेप्शन होता है, लेकिन सोसाइटी में इसका तो कोई एक इन्फ्लुएंस मिल रहा है। पहले हम कम्युनिकेट कैसे करते थे? पहले हम बोलते थे अगर मान लो गुवाहाटी जाना है और मान लो कलकत्ता जाना है, कब कलकत्ता जाना है, बाप रे बहुत दूर है, मतलब यूएस जाना है, मान लो 2 महीना 3 महीना 4 महीना लग सकता है। अभी एक दिन में भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी, फिजिक्स अप्लाई करके हम टेक्नोलॉजी इन्वेंशन कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को किसके ऊपर इम्पैक्ट दे रहा है? सोसाइटी में। मीन्स सोसाइटी इज चेंजिंग, सोसाइटी इज एक्चुअली इवॉल्विंग। हम बोल सकते हैं सोसाइटी इज इवॉल्विंग। सोसाइटी इज इवॉल्विंग, सोसाइटी इवॉल्व हो रहा है। क्लियर? पहले क्या होता था? पहले जो मतलब ओआर वगैरह होते थे, कैसे होते थे? सोर्स से होते हैं, स्टील से होते हैं। अभी ऐसे होता है क्या? एक प्लेन गया, बम फेंक के आया, खत्म। ठीक है, तो सोसाइटी में इसका टेक्नोलॉजी का एक इम्पैक्ट है। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, मैं एनसीईआरटी बुक तुम्हारे पास है ना? हाँ, पीडीएफ है। पीडीएफ है। मैं तुमको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो, मतलब सम साइंटिस्ट का फाइंडिंग है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ, तुम्हारे स्क्रीन में मिलेगा, देखो। दिख रहा है? हाँ। देखो यहाँ पर अभी शायद पेज नंबर 5 होगा, 5 होगा पेज नंबर एनसीईआरटी का। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया है? नेम मेजर कंट्रीब्यूशन एंड कंट्री ओरिजिन। यहाँ पर तुम इंडिया का अगर कोई होगा, देखो इंडिया के कोई साइंटिस्ट है क्या? इंडिया, सीवी रामन। सीवी रामन किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी दिया तुमको। सीवी रामन को किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल प्राइज मिला था? क्या लिखा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मिला? लाइट दिखा ना? हाँ। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद और इंडिया से कौन है? एम एन मेघनाथ साहा। एम एन साहा दिख रहा है? इसका फुल फॉर्म है मेघनाथ साहा। तो किसके ऊपर था? थर्मल आयोनाइजेशन। उसके नीचे और एक साइंटिस्ट का नाम है सत्येंद्रनाथ बोस। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, वो भी इंडिया के थे। सत्येंद्रनाथ बोस बहुत पॉपुलर है। तुमने बोसोन के बारे में सुना है? बोसॉन पार्टिकल्स। यूनिवर्स में जितने पार्टिकल्स मिलते हैं उसका 70% पार्टिकल्स को बोसॉन किया बोला जाता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को मानता है। तो ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स ने किसने दिया था? किसके ऊपर बोसॉन का नाम दिया गया? आइंस्टाइन और हाँ ना, बोसॉन का नाम दिया बोस के ऊपर। देखो एन बोस, इसके ऊपर ही दिया गया। हाँ। ओके, और देखो, और इंडिया से कोई है क्या? इंडिया से और एक देखो, होमी जहांगीर भाभा। उसको किसने? कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। ठीक है, और लास्ट में देखो एक पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान का अब्दुल सलाम। उनका भी एक जबरदस्त फाइंडिंग है। उन्होंने वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई किया था। उनको इसके लिए नोबेल भी मिला था, पाकिस्तान का साइंटिस्ट।
मेरी डिसीजन फाइंडिंग है अभी, ठीक है। ये तुमको पेज नंबर 5 और 6 में मिल जाएगा, देख लेना। कंट्री ऑरिजिन देख लेना, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है देख लेना, क्योंकि मैंने तुमको जो होमवर्क दिया था इसके ऊपर क्वेश्चंस है। किसने कौन सा डेवलप किया है, ठीक है। बैक कर रहा हूं मैं स्क्रीन में, ठीक है। अभी हम देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट वन, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर बेसिक ही देखेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखो, तुम चारों तरफ जितना सारा मतलब जो भी देख रहे हो ना, उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तुम आग के ऊपर मतलब आग में ऊपर हो, ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक फोर्स है। क्या फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी देखो, हमारा एनी पार्टिकल, इस पेन को मान लो, पेन में बहुत सारे एटॉम्स है, एटॉम्स में चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर भी कोई फोर्स काम कर रहा है, इसलिए ये पेन ऐसे इंटैक्ट है ना, एक साथ है। पार्टिकल्स अलग अलग सेपरेट क्यों नहीं हो रहा है, एक साथ कैसे है? तो इसके ऊपर भी कोई फोर्स लग रहा है। उसके बाद हमने जानते हैं न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में मान लो क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स होता है ना। अच्छा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है। प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अभी देखो, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल। तो पॉजिटिव चार्ज अगर रिपेल करेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन एक साथ कैसे है? एक और फोर्स होगा अट्रैक्ट, दूसरा और कोई फोर्स होगा जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स भी दो तरीका का होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, व्हाट आर दोस फोर्सेस। मतलब यूनिवर्स में जितने सारे फोर्स देख रहा है वो सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस का मैनिफेस्टेशन है, 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस का मैनिफेस्टेशन है। तो व्हाट आर दोस फोर्सेस डू यू नो? फर्स्ट वन मैंने क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाँ, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? हम जानते हैं एवरी मास अट्रैक्ट एवरी मास, मतलब हर एक मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। m1 m2, suppose the distance between their center is r, distance between their centers is what? r. So what would be the force of attraction between these masses? Tell me. G m1 m2 by r square। देखो, अभी देखो मैंने क्या बोला, ये जो फोर्स लगता है कैसे लगता है? सेंटर टू सेंटर लगता है। इस हम जो r डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस मास टू सेंटर ऑफ दिस मास। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सेंटर टू सेंटर होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन टाइप ऑफ व्हाट फोर्स? Central force. Why it is central force? Because it acts center to center. सेंटर लगता है, मतलब सरफेस से नहीं लगेगा, सेंटर से सेंटर लगेगा, ठीक है। अभी देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, इट कैन नॉट बी रिपल्सिव, it is always attractive, always, it cannot be repulsive। okay, next, remember gravitational force is the weakest force in nature, weakest force in nature। मतलब हम जितने सारे फोर्स के बारे में बोलेंगे, मैं कितना व्हाट आर द नंबर ऑफ फोर्सेस? टेल मी। फंडामेंटल फोर्सेस 4। उनमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स।
फोर्स। इसका हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऐसे, मैं एक टेबल बना दूंगा तुमको, हाँ पहले सीख लेते हैं उसके बाद मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है। इसका रेंज होता है 10 टू द पावर -39 रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है 10 टू द पावर -39, मतलब बहुत ही कम होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? सन अर्थ, मतलब बिगर मासेस, सन अर्थ मून, इसके ऊपर फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर फॉर्मूला काम नहीं किया था? किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब ऐसा नहीं है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन वो क्या है? बहुत क्या है? वीक है। वीक क्यों होगा? वीक क्यों होगा? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ सन, इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ अर्थ क्या होता है? बहुत ही कम होता है। बहुत कम होता है। तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं, पहले बोलो। इज देयर एनी ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉट? है, लेकिन क्या है वो? बहुत कम है। बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके ऊपर कोई अलग फोर्स लगेगा, हम आएंगे क्या फोर्स है, मैं आ रहा हूँ, हाँ। ठीक है। अभी देखो, बोलो तो, इस डस्टर के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल है ना? इस डस्टर के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल है ना, डाउनवर्ड है। हाँ। अभी मैं इस डस्टर को ऊपर ले जा रहा हूँ। कैसे? मान लो एक क्रिकेट बॉल है, मान लो इसका मास m है, मास m है। हाँ। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा? तुमको मालूम है ना, ग्रेविटेशनल पुल एनी फोर्स, पुल इज ए फोर्स, F इक्वल टू what? F इक्वल टू m इंटू a। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स m into a means what? Acceleration. Acceleration due to gravity is denoted by what? G. मालूम है ना? G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मालूम है। अभी देखो, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है नीचे, mg। ओके, तो इसको ऊपर लेने के लिए मिनिमम कितना फोर्स देना होगा? F और F से थोड़ा ज्यादा, मिनिमम मैंने बोला। मान लो इसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स है डाउनवर्ड, तो ऊपर लेने के लिए मैं 1 से थोड़ा ज्यादा फोर्स दूंगा। मतलब मान लो मैंने बोला F कितना न्यूटन है? 1 न्यूटन। तो मुझे कितना फोर्स ऊपर देना होगा? ऊपर लेने के लिए 1.00000001 न्यूटन। देखो, मैंने 1 से थोड़ा ही ज्यादा फोर्स दिया। अभी देखो, ये मास किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। अभी देखो, तो इसको ऊपर लेके मैंने मान लो h हाइट में लेके गए, h हाइट में, तो वर्क डन कितना होगा? तुमने लोअर क्लास में पढ़ा था ना, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स। तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू mg, mg और mg is very good, and which is nothing but what? Potential energy। वेरी गुड। हमने जो वर्क किया उसको ही हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी होके स्टोर हुआ। देखो, अभी बोलो तो, इस मास को स्ट्रेट ना लेके हम अगर ऐसे लेके जाएंगे तो कितना वर्क लगेगा? तो कितनी एनर्जी चाहिए? ज्यादा लगेगा। नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी mgh होगा। मैं थर्ड पाथ दिखा रहा हूं, सपोज सेमी सर्कुलर पाथ में लेके आओ, इसके ऊपर भी अगर लाओगे तो भी कितना वर्क करना पड़ेगा? mgh, ठीक है। अभी देखो, मैं यहाँ पर तुमको सिर्फ मैं डिटेल्स नहीं बोल रहा हूँ, क्यों होता है ये सब बाद में आएगा, ठीक है। इसके ऊपर चैप्टर है, डेडिकेटेड चैप्टर। हम यहाँ पर शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ज्यादा मतलब ब्रेन में प्रेशर मत दो, मतलब ये तो कैसे हुआ सर, ये तो मालूम नहीं है, सीखेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो, तो हमने क्या देखा? ग्रेविटेशन के अगेंस्ट हमने जो वर्क किया वो पाथ के ऊपर डिपेंड
करता है या नहीं नहीं करता करते, है? नहीं नहीं करता। करता। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब work due to gravitational force, work due to gravitational force is tell me path dependent or very good, path independent। नोट करना है तुमको, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर कोई वर्क डन ड्यू टू सम फोर्स, व्हिच फोर्स? gravitational force is path independent, then such type of force is called conservative force। अगर किसी फोर्स के कारण वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होगा तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। हम डिटेल में इसके ऊपर बाद में पढ़ेंगे, अभी मतलब थोड़ा मतलब नॉलेज ले लो, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स। Another thing is that conservative force always follow inverse square law। inverse square law का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मास के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा या घट जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स बोले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और किसके साथ? डिस्टेंस के साथ या स्क्वायर के साथ? डिस्टेंस का स्क्वायर के साथ। तो इसको हम बोलेंगे एनी कंजर्वेटिव फोर्स फॉलो व्हाट? इनवर्स स्क्वायर लॉ। वेरी गुड, इनवर्स स्क्वायर लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अंडरलाइन जिसके ऊपर किया है, अंडरलाइन करना है तुमको। लिख लो, एनी कंजर्वेटिव फोर्स फॉलोज व्हाट? इनवर्स inverse स्क्वायर square law, follows inverse square law। okay, done? यस सर, डन। ओके, और एक पॉइंट के बारे में मैं बोलूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपन मीडियम मतलब दो मास के बीच में जो फोर्स होगा, अभी मास के बीच में फ्री स्पेस हो पानी हो या गैस हो, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। क्लियर? मतलब दो मास के बीच में क्या मीडियम है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक फ्री स्पेस भी हो सकता है, जैसे मत मान लो, मतलब सन और अर्थ के बीच में क्या मीडियम है? वैक्यूम। फ्री स्पेस, वैक्यूम, वेरी गुड। तो अगर दूसरा कोई मीडियम भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स क्या लगेगा? सेम ही लगेगा, फोर्स सबके लिए ही सेम होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम जिस फोर्स के बारे में बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लिया? हाँ। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज, मैंने बोला था तुमको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैं मतलब एनसीईआरटी बुक का जो सीक्वेंस है वो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा मतलब चेंज कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी देखो, सपोज देयर आर टू चार्जेस plus q1, sorry, suppose there are two charges plus q1 and another charge plus q2, ठीक है। तो इसका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो मान लो क्या है, r है। टेल मी, between these charges there is a attractive force or repulsive force? So it depends upon the positive and negative charge. Both the charges are positive. Repel. Okay, so there will be a repulsive force,
and this is mutual repulsive force. Why mutual? देखो, Q1 charge is repelling Q2 charge. Similarly, Q2 charge is also repelling Q1 charge. Okay, so this is mutual force. Okay, similarly, tell me if the charges are unlike charges, unlike means positive, negative, so they would attract each other. attract. So tell me, nature of the electromagnetic force is attractive or repulsive or both? Both. Both means it can be attractive as well as repulsive. Okay, अभी देखो यहाँ पर जो मैंने डिस्टेंस दिखाया, जो डिस्टेंस मेजर किया वो सेंटर टू सेंटर बोला ना. अगर सेंटर टू सेंटर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? याद करो. सेंट्रल फोर्स. तो ये भी सेंट्रल फोर्स है. अभी क्लास 12 में क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू होता है स्मॉल के. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. जैसे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 modulus of Q1 Q2 then R square. Okay, done. Similarly, suppose there are two magnetic poles. मैं दो मैग्नेटिक पोल के बारे में बोल रहा हूँ. Suppose this is north pole and this is south pole. The magnetic strength of the north pole is M1. M1 is not mass. यहाँ पर M1 मास नहीं है. M1 को मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. ये भी हम सेकेंड ईयर में मतलब क्लास 12 में सीखेंगे. सपोज नॉर्थ का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है M1, साउथ का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है M2. टेल मी, देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? Attractive. Unlike poles. अच्छा, what is the value of that attractive force? F equal to मान लो मैंने लिखा Km को हम बोलेंगे मैग्नेटिक कांस्टेंट. इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई. बाद में देखेंगे, सेकेंड ईयर में हम सीखेंगे क्लास 12 में. इनटू क्या होता है? M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. देखो, this is the force between the charges and this is the force between the magnetic poles. इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक पोल्स के बीच में क्या फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स. ओके, अभी देखो मैक्सवेल ने क्या दिखाया था? Electrostatic force and magnetic force are not different. They are actually aspects of same force. उसका नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग फोर्स नहीं है. एक ही फोर्स के दो एस्पेक्ट्स हैं और उन्होंने इसका नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके, क्या? अभी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 to the power 36 और बोल सकते हो 10 to the power 37 times stronger than gravitational force. मैंने क्या बोला था? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बहुत क्या होता है? वीक होता है, वीकेस्ट होता है. उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस फोर्स बिटवीन द चार्जेस एंड फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक फोर्सेस. देखो 10 to the power 36. कैन यू इमेजिन दैट? 10 to the power 36 मींस व्हाट? 1, then after 1 there are 36 zeros, means much greater than the gravitational force. अभी बोलो तुम, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में
ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं? आंसर दो। एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स है पर कम है। कम है, वीक है। तो कौन सा, किसका किसका डोमिनेंस होगा? डोमिनेंस किसका होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का डोमिनेंस मैग्नेटिक होगा। फोर्स। व्हाई? बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। ओके, डन डन। अभी देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो ओबेइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ। तो ये भी क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ये भी क्या होगा? पाथ पाथ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। दिस इज आल्सो path independent. Okay, tell me, if this force is path independent, so you can say that key force. Tell me, conservative force. Conservative force. Okay, conservative force follow what? Inverse square law. Inverse square law means what? Force is inversely proportional to the square of the distance. Clear? So this is attractive, repulsive, central, then conservative and inverse square law. Okay? Yes. Okay. Now gravitational force medium के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन electromagnetic force is medium dependent. It depends upon the medium. मतलब एक दो चार्ज को हम Q1 Q2 चार्ज को अगर वैक्यूम में रखेंगे तो जो फोर्स लगेगा, एयर में रखेंगे और एक फोर्स लगेगा, अगर पानी में रखेंगे तो अलग फोर्स लगेगा। मतलब क्या होता है, डिफरेंट मीडियम में फोर्स का वैल्यू सेम नहीं आता। क्या आता है? डिफरेंट आता है। तो ये अलग अलग आता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियम डिपेंडेंट और मीडियम इंडिपेंडेंट। तो दिस इज मीडियम डिपेंडेंट मींस ऐसे बोल सकते हैं, इंटरवेनिंग मीडियम डिपेंडेंट। नोट करो, इसके ऊपर क्वेश्चन होगा। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है? नोट किया? हाँ। ठीक है, अभी हम थर्ड टाइप के फोर्स में जाएंगे। थर्ड टाइप ऑफ फोर्स, एंड थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। Strong nuclear force is the strongest force. What was the weakest force? Gravitational. And what is the strongest force? Strong nuclear force. अभी देखो, strong nuclear force किसमें लगता है? Strong nuclear force, एक मान लो, देखो nuclear means related to what? Related to nucleus. न्यूक्लियस में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है? मतलब न्यूक्लियस कौन सा है? टेल मी। प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स है, देन न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन में तो पॉजिटिव दिखाया, पॉजिटिव चार्ज, जीरो दिखाया, मतलब इसका चार्ज नहीं है। अभी देखो, इन बिटवीन दिस प्रोटॉन, चलिए, प्रोटॉन हैज मास और नॉट? हैज। ओके, प्रोटॉन के बीच में मास है। तो प्रोटॉन के ऊपर अगर दो प्रोटॉन ऐसे है, दो प्रोटॉन, सपोज दिस इज फर्स्ट प्रोटॉन एंड दिस इज द सेकंड वन इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, तो मास है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्या फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है? उसके बाद these protons have charges, सेम चार्जेस है, तो लाइक चार्जेस मतलब क्या होगा? रिपेल करेगा, तो रिपेल होगा। तो इसको हम बोलेंगे Fe,
एफ ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी देखो किसका डोमिनेंस ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का डोमिनेंस ज्यादा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, किसका डोमिनेंस होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अभी देखो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ है, तो अभी अभी तुमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का अगर डोमिनेंस होगा तो रिपेल होकर अलग हो जाएगा, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, राइट? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का Yes. डोमिनेंस होगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन अलग अलग चला जाएगा, तो न्यूक्लियस हाँ. अनस्टेबल होगा। तो तुमको सोचना पड़ेगा और कोई एक फोर्स है जो इस दो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। And strong nuclear force is 100 times stronger than the electrostatic force. Strong nuclear force is 100 times stronger than the electrostatic force. तो strong nuclear force के कारण इसके ऊपर मैंने बोला एफ फॉर स्ट्रॉन्ग, एफ के कारण, और एफ एन भी बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ओके व्हाटएवर। अभी देखो there are three forces: gravitational force, electrostatic force और electromagnetic force and strong nuclear force। सबसे strongest कौन सा है? Strong nuclear force. तो फाइनली डोमिनेंस तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ही होगा, इसलिए एक न्यूक्लियस स्टेबल होता है। क्लियर? क्लियर? अभी देखो Yes, sir. इंटरेस्ट, और एक इंटरेस्टिंग बात देखो, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में लगने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, दीज आर सेम। तीनों फोर्सेस सेम है, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो क्या समझ में आया? इसका कंक्लूजन क्या होगा? प्रोटॉन 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 और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में अगर फोर्स ज्यादा होगा तो इसका कंक्लूजन यही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज, टेल मी, चार्ज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? Independent. वेरी गुड, चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करे, इंडिपेंडेंट। क्लियर? अच्छा, अभी देखो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स काम करेगा, ए सेंटर टू सेंटर नहीं होगा, सेंटर टू सेंटर नहीं होगा, तो दिस इज नॉट अ व्हाट फोर्स? Central force. सेंट्रल फोर्स। तो इसको हम बोलेंगे नॉन सेंट्रल फोर्स, नॉन सेंट्रल फोर्स। इसके बारे में भी हम सेकेंड ईयर में मतलब क्लास 12 में सीखेंगे, न्यूक्लियर एक चैप्टर है उसके ऊपर सीखेंगे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी देखो दिस फोर्स डज नॉट फॉलो इनवर्स कॉइल लॉ, इनवर्स कॉइल लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है? अगर इनवर्स लॉ फॉलो नहीं करता तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? Non-conservative. So this is non-conservative force as it does not obey inverse coil law, does not obey inverse coil law। Tell me, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के फोर्स के अगेंस्ट में कोई वर्क करना है तो वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होगा या नहीं? It will be path dependent or independent? Sir, can you repeat the question? मैंने बोला अगर मान लो दो प्रोटॉन अट्रैक्ट हो रहा है ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो मैंने बोला इसको अगर सेपरेट करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क। Yes, sir. अभी मैंने बोला दिस वर्क इज पाथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? Independent. पाथ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगा तो कौन सा कंजर्वेटिव होगा? मैंने क्या बोला?
हाँ डिपेंडेंट। मैंने बोला ना, एक बॉल को, पेन को ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ और ऐसे लेके जाओ, वर्क सेम होता है। तो किसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर? किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं? ग्रेविटेशन। हाँ। So gravitational force is path independent. That's why it is conservative, and it is non-conservative. So it would be path dependent. Work is path dependent. Okay. Another thing is that this force is always attractive. It cannot be repulsive. Strong nuclear force is always attractive. Always. Okay. Next one. और एक बोलेंगे, अच्छा, this also independent of or does not depend on medium. ये भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, like gravitational force. Another important thing is that this is the strongest force and it is 10 to the power 38 to 10 to the power 39 times stronger. 9 times stronger than the weakest force. What was the weakest force? Tell me. Gravitational force. So it is 10 to the power 38 times stronger than the gravitational force. Gravitational force. Okay, done. ठीक है? नोट कर लो। कर लिया। Okay. Now the last one. Last one is weak nuclear force. Weak nuclear force. यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अगर पूछे व्हाट इज द वीकेस्ट फोर्स, ऐसा आंसर नहीं देना वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ये वीकेस्ट फोर्स नहीं है। इट इज वीकर इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, बट स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये वीकेस्ट फोर्स नहीं है। ठीक है, अभी देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके ऊपर लगेगा? सम एलिमेंटरी पार्टिकल्स के ऊपर लगेगा। एलिमेंटरी पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा। इलेक्ट्रॉन को हम बीटा माइनस पार्टिकल बोलेंगे। और तुमने मालूम है ना, मतलब रेडियो एक्टिव में बीटा डिके होता है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर बीटा डिके क्या करता है? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रे। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे। अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल positively charged particles. Right. Alpha particle is helium nucleus. Alpha particle is nothing but helium nucleus. Helium का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। क्लियर? अभी बीटा पार्टिकल, बीटा जो डीके होता है, 2 टाइप का बीटा डीके होता है। एक बीटा माइनस डीके और एक बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन एंड बीटा प्लस इज नथिंग बट पॉजिट्रॉन। इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ये पॉजिट्रॉन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, सेम चार्ज बट ऑपोजिट। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर? तो बीटा पार्टिकल के ऊपर लगेगा, पॉजिट्रॉन के ऊपर लगेगा, देन न्यूट्रिनो के ऊपर लगेगा। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो और बोसॉन्स के ऊपर लगता है। बोसॉन्स मैंने अभी बोला, बोसॉन्स किसके ऊपर नाम दिया गया है? एसएन बोस। सत्येंद्रनाथ बोस, उनके ऊपर नाम दिया गया था बोसॉन्स। आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा तो बोसॉन्स बोलेंगे। ठीक है, इन एलिमेंटरी पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो न्यूक्लियस में ही रहता है। हाँ, न्यूक्लियस में रहता है।
देखो अभी देखो तुम, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए था सर, एक यूरेनियम न्यूक्लियस आपने बोला बीटा माइनस पार्टिकल डिके करेगा, ठीक है, बीटा माइनस पार्टिकल। व्हाट इज बीटा माइनस पार्टिकल? सो मैंने बोला बीटा माइनस पार्टिकल इज नथिंग बट व्हाट? इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारा पहला आर्गुमेंट ऐसा होना चाहिए था सर, न्यूक्लियस में तो सिर्फ क्या है, प्रोटॉन्स है और क्या है, न्यूट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन कैसे आया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है ना? न्यूट्रॉन ब्रेक नहीं होता, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। मतलब न्यूक्लियस का जो मतलब पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस है, वो मतलब कन्वर्ट होता रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, मान लो एक न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियस का जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में। अभी अच्छा, तुमने लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज क्या दिखाया गया है, जीरो मतलब क्या है, न्यूट्रल। तो राइट हैंड साइड शुड बी आल्सो न्यूट्रल, मैंने तो पॉजिटिव दिखाया, मतलब यहाँ पर एक बीटा माइनस पार्टिकल आएगा। देखो एक न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इसको बैलेंस करना है ना, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो होना पड़ेगा, तो एक प्रोटॉन मिलेगा, एक बीटा माइनस पार्टिकल बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन, और एक मिलेगा एंटी न्यूट्रिनो, इसको हम बोलेंगे एंटी न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या बोला, एक न्यूक्लियस बीटा प्लस पार्टिकल भी डीके करता है। बीटा प्लस पार्टिकल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल का नाम क्या मैंने बोला, क्या था ना, न्यूट्रिनो, नो, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये कैसे होता है, देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो बीटा माइनस डीके होगा, और प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो क्या डीके होगा, बीटा प्लस डीके होगा। बैलेंस करो, इसमें पॉजिटिव है, दिस साइड शुड बी आल्सो पॉजिटिव, और एक न्यूट्रिनो मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, न्यूट्रिनो। अभी देखो समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो एक न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, बीटा माइनस पार्टिकल डीके करेगा, तो एक्चुअली क्या होता है, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो मैंने एलिमेंटरी पार्टिकल के बारे में बोला, बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, इनके बीच में एक शॉर्ट रेंज का फोर्स काम करता है, वेरी शॉर्ट रेंज का फोर्स काम करता है, ठीक है। इसका रेंज है 10 टू दी पावर माइनस 16 टू 10 टू दी पावर माइनस 18 मीटर, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स एंड वेरी वीक फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको हम बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। And another thing is that, tell me, gravitational force, attractive or repulsive? Attractive. Electromagnetic force? Repulsive. Attractive, repulsive, both. It can be both. Okay. What? Strong nuclear force? Attractive. Weak nuclear force is neither attractive nor impulsive. Attractive भी नहीं होता, रिपल्सिव भी नहीं होता, इसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव फोर्स, इसको हम बोलेंगे रेडियो एक्टिव फोर्स। एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फोर्स है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मतलब सिर्फ बेसिक डिस्कशन चल रहा है।
रेडियो एक्टिव फोर्स मतलब रेडियो एक्टिव डीके के टाइम में जो शॉर्ट रेंज का फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव फोर्स, नाइदर अट्रैक्टिव नॉट रिपल्सिव। इट डजंट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। तो क्लियर Yes, and sir. the last one, what is the relative strength of this force? What is the relative strength? See, this weak nuclear force is 10 to the power 25 to 10 to the power 26 times stronger than, हम किसके हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं बोलो, then what, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल जो वीकेस्ट फोर्स है उसके कंपैरिजन में 10 to the power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। क्लियर नोट Yes, कर sir. लो, नोट कर कर लो। लिया। और क्या क्या बोला मैं, नॉन कंजर्वेटिव, देन की नॉन सेंट्रल, it is non conservative force and also non central force, राइट। अभी देखो जितना सारा फोर्स दिखा उसके ऊपर मैं एक टेबल बनाऊंगा, इसके ऊपर एक टेबल होगा, अभी जितना सारा नॉलेज मिला, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस इसके ऊपर ही आते हैं इस चैप्टर में, तो इसके ऊपर मैंने नोट कर लिया ना। हाँ। ओके, अभी हम एक टेबल बनाएंगे। कैसा टेबल, हम पहले बोलेंगे व्हाट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ, देन रेंज, रिलेटिव स्ट्रेंथ, देन रेंज, देन ऑपरेट्स एमोंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। फोर्सेस का नेचर क्या है वो देखेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स, वेदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देन बोलेंगे सेंट्रल और नॉन सेंट्रल, इसके ऊपर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। उसके बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ, whether it follows inverse square law or not, inverse square law। अच्छा, रेंज लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और लास्ट वन मीडियम, whether these forces depends upon the medium or not, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं। So tell me what are the forces? Gravitational force. ओके, FG लिखता हूँ शॉर्ट में, FG ग्रेविटेशनल फोर्स शॉर्ट में लिखता हूँ। नेक्स्ट क्या सीखा हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, F हेलो, हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा था। ओके ठीक है, अभी ठीक है। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ, सी if the relative strength of gravitational force is 1, then electromagnetic force is 10 to the power, tell me, 35 to 10 to the power 36। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी 100 इसका 100 टाइम्स, तो क्या होगा 10 to the power 37
and 10 to the power 38. And weak nuclear force is 25 to 26 times stronger. Okay. अभी देखो, what is the range of gravitational force? Gravitational force इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कम करता है, मतलब कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स शॉर्ट रेंज में भी काम करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस में भी काम करेगा। श्योर। सिमिलरली लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैज आल्सो इनफाइनाइट रेंज, बट न्यूक्लियर फोर्सेस आर very short range forces. Very short range force means what? Strong nuclear force is only active for 10 to the power -15 मीटर। इसका मतलब क्या होता है? एक प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस अगर इतना शॉर्ट होगा 10 to the power -15 मीटर, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एग्जिस्टेंस होगा। अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन को थोड़ा भी इस डिस्टेंस से दूर लेके लिया जाए तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तब वो रिपेल करके चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगा, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, कितने डिस्टेंस पे काम करेगा? 10 to the power -15 मीटर रेंज में ही काम करेगा। डिस्टेंस इससे थोड़ा बढ़ेगा तो उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तब क्या करेगा? रिपेल करेगा। ड्यू टू व्हिच फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज इससे भी कम होता है। ये तो न्यूक्लियन के ऊपर लगता है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियन के बीच का अंदर का जो पार्टिकल्स है वो इससे भी कम होगा, 10 to the power -60 मीटर। दिस इज द रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज। बोथ दिस फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट। क्लियर? अगर एक प्रोटॉन को 1 मीटर डिस्टेंस में रखा जाए और 0.1 मीटर, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये दो फोर्स का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है। ऑपरेट्स अमॉन्ग, टेल मी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट्स अमॉन्ग व्हाट masses? हेलो? Yes, sir. ओके। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑपरेट्स अमॉन्ग व्हाट? टेल मी। चार्जेस और मैग्नेटिक पोल्स। चार्जेस और मैग्नेटिक पोल्स। ओके। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके ऊपर काम करेगा? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है बोलो? Protons and neutrons. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके ऊपर काम करता है? एलिमेंटरी पार्टिकल्स। एग्जांपल तो मैंने लिखा है, एलिमेंटरी पार्टिकल्स एग्जांपल क्या बोला था मैंने, बोलो। Proton, neutron, and antineutrino, neutrino. प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं था। पॉजिट्रॉन, Electron. मतलब बीटा प्लस, बीटा माइनस, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोसॉन, किसके ऊपर काम करेगा? ठीक है। नेचर, टेल मी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज attractive. It can be attractive as well as repulsive. Strong nuclear force is always attractive, and weak nuclear force is neither attractive nor repulsive. क्या बोला था मैं? This is radioactive actually. Radioactive. Okay. Tell me, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के बीच में सेंटर टू सेंट्रल काम करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। ये भी काम करता है सेंटर टू सेंटर, तो दिस इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स, एंड दिस वन नॉन सेंट्रल, एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉन सेंट्रल।
इस टेबल में पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, देखो मैंने जो जो डिस्कस किया एक टेबल में दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, कंजर्वेटिव, टेल मी, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव और नॉट? Yes. Yes. Electrostatic force conservative or not? Yes. Yes. Strong nuclear force? No. This one is also no. Achha. Conservative force follows inverse square law, so it follows. Yes. This one also yes. This one no. This one also no. Okay, medium. Tell me. मीडियम सिर्फ Does not require. सिर्फ एक ही फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा फोर्स? Electromagnetic force. यस, तो मीडियम डिपेंडेंस, मीडियम डिपेंडेंस यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो, नो एंड नो, सो द ओनली फोर्स लेफ्ट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इज electromagnetic force. Done. Draw this table. Most of your answer related to force इससे सॉल्व हो जाएगा। Drawn, sir. ओके ना? ओके, तो मैंने तुमको एक असाइनमेंट दिया था ना, DPP 1 लिख के। हाँ. तो तुम्हारा होमवर्क है, तुम जो असाइनमेंट दिया गया है असाइनमेंट को कंप्लीट करके तुम पेपर में लिखो, कहीं भी लिखो, लिख के तुम मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर देना, ठीक है? हाँ. और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो जिसमें प्रॉब्लम आएगा, जो डिस्क्रिप्टिव होगा थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे क्वेश्चंस को। कोई किसी भी प्रॉब्लम हाँ. में दिक्कत होगा तो वो एक्सप्लेन करेंगे। अब ज्यादातर क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव है तो उसको तुम कर पाओगी, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय। तो दिस चैप्टर इज कंप्लीट है। तुमको क्या करना है, अभी जो भी सीखा गया है उसके ऊपर ज्यादा करके प्रॉब्लम सॉल्व करो। सिर्फ मेरे दिया गया क्वेश्चन, और भी बुक्स लो, तुमको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मिला है ना एच.सी. वर्मा, वहां से भी करो, ठीक है? तो क्लास को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।